Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। Good morning, everyone who are there sitting at home. और सुप्रभात उन लोगों को भी जो घर पर बैठकर हमें देख रहे हैं। So today I'm going to continue from where I finished last time. तो आज मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा जहां पर गए बार मैं रुका था। I shared from the book of Joshua chapter 7. और मैंने यहोशू की किताब 7वें अध्याय से बांटा था। You know, it's about Israel being defeated at the city of Ai. और इज़राइल जो हार जाता है आई शहर पर। And we learned some principle from that story. और उस कहानी से हमने कुछ सिद्धांत भी सीखे। So today we are going to look at Joshua chapter 8. तो आज हम यहोशू की किताब 8वें अध्याय को देखने वाले हैं। And in this chapter we see Israel defeating the city of Ai. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो आई शहर को हरा देता है। And rather very easily they were defeated. और बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। When God dealt with the sin of Israel and they had, God with them and they could defeat the city. और जब परमेश्वर ने उनके पाप के साथ में निपटारा किया तो उस शहर पर वो विजयता हासिल कर पाए। And in chapter 8, a few verses caught my attention. और 8वें अध्याय में कुछ वचन है जिन्होंने मेरा ध्यान खींच So I'm लिया। going to read 6 verses तो मैं 6 वचन पढ़ूंगा and we'll just pray. और हम प्रार्थना If करेंगे। you're following with me on your Bible, अगर आप शास्त्र को मेरे साथ पढ़ रहे हैं, okay, I will read one verse or Dipina will start reading from verse 30. और मैं एक वचन पढ़ूंगा और Then दीपिना 30 वचन से आगे I will पढ़ेगी। read 31 and so forth. और फिर फ्रैंको एक वचन पढ़ेंगे और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। Yeah, you read 30. तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई। As Moses, the servant of the Lord, had commanded the Israelites, he built it according to what is written in the book of the law of Moses, an altar of uncut stone, on which no iron tool has been used. On it they offered the Lord the burnt offering and sacrificed fellowship offering. उसी स्थान पर यहोशू ने इज़राइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। Verse 33, all the Israelites and their elders, officials and judges were standing on both sides of the ark of the Lord, facing the Levite priests who carried it. Both the foreigners living among them and the native born were there. Half of the people stood in front of the Mount Gerizim and half in front of Mount Ebal, as Moses, the servant of the Lord, had formerly commanded when he gave instruction to bless the people of Israel. उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ कर सुना दिए। Verse 35, and that was not a word, there was not a word of all that Moses had commanded that Joshua did not read to the whole assembly of Israel, including the women and children and the foreigners who lived among them. Let's just pray. I'll pray in English and Hindi. Father God, we just want to thank you for this time, Lord. We thank you for the wonderful time of worship. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक टाइम के लिए परमेश्वर हमको आराधना में अगुवाई किया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम परमेश्वर आपका वचन देख रहा हूँ परमेश्वर हमको आशीष करो। आप सबसे बड़ा शिक्षक है परमेश्वर। You're the best teacher, Lord God, and I pray Holy Spirit you will teach us and you will speak to us, Lord God. परमेश्वर पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते परमेश्वर आज हमको शिक्षा देगा परमेश्वर आपका वचन के द्वारा। Lord, we just pray that you will teach us, Lord, and you will instruct us, Lord, and you will just, Lord, wash us with your word, Lord. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Here we see Joshua doing an unusual thing after they won the victory against the city of Ai. और आई शहर के खिलाफ जब वो जीत जाते हैं हम यहाँ देखते हैं यहोशू एक असाधारण सा कुछ करता है काम। He built an altar with uncut stones. और वो एक ऐसी वेदी बनाता है समूचे पत्थरों के साथ।
which was written by Moses in the book of in Exodus, that when you build an altar, the stones must be uncut. No chisel, no tool should touch those stones. और जो निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है, जहाँ पर मूसा कहता है कि जब तुम वेदी बनाओगे तो वो समूचे पत्थरों के द्वारा बनाई जानी चाहिए, उस पर कोई छेनी नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ काम नहीं किया जाना It's चाहिए। written in Exodus chapter 20 verse 25 says, if you make an altar of stones for me, do not build it with build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. और निर्गमन के 20वें अध्याय वचन 25 में वहाँ पर लिखा है, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। What is this uncut stone, altar of uncut stones? तो ये क्या है समूचे पत्थरों की वेदी बनाना? You know, I grew up in a village. और मैं गांव में पाला पोसा And गया, as I grew up, I've seen more walls built with uncut stones. If we can just put the next picture. और जैसे मैं बड़ा Next हुआ one. मैंने देखा कि कई ऐसे दीवारें बनाई गई जो समूचे पत्थरों से बनी थी। Can you see this? क्या आप ये चित्र देख रहे हैं? Yeah, ऐसा वाला आप देखा है ना? Yeah, it's walls built with uncut stone. No tool has been applied on it. और आप जैसे ये देख रहे होंगे इस दीवार को, ये समूचे पत्थरों से बनाई गई है, इस पर किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। Just in front of my house, the wall was built, you know, like this. और मेरे घर के सामने ही दीवार इस तरह से बनाई गई थी। And I want to tell you, it's more stronger than the brick wall we build these days. और मैं आपको बताऊं जो ईंट की दीवारें हम आजकल बनाते हैं उससे ज्यादा ये ताकतवर होती है। And you know, the Bible speaks about you and me being stones like that. और शास्त्र बताता है कि आप और मैं उस तरह के पत्थर हैं। 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. और एक पत्रस का दूसरा अध्याय वचन 4 और 5। It says, as you come to him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him. And verse 5, and you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. और वहाँ पर लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। It says we are living stones built together to become a spiritual house. और वहाँ पर लिखा है कि हम ऐसे जीवते पत्थर हैं जो साथ में बनाए जा रहे हैं ताकि एक आत्मिक घर बनाया जाए। And if you look at this, you will never see a similar one. It all looks different. और अगर आप इस चित्र को देखोगे तो आप देखेंगे एक जैसा यहाँ पर कोई पत्थर नहीं है, वे सब अलग दिखाई दे रहे हैं। Am I right? Can you find anything similar? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आपको कुछ भी यहाँ पर एक जैसा दिखाई दे रहा है इन पत्थरों The में? strength of the wall is not in the sameness of the stones. और इस दीवार की जो ताकत है वो पत्थरों के एक जैसे होने में नहीं है। Not in the similarity of the stones, but in the difference of the stones. एक जैसे होने में नहीं, लेकिन पत्थरों के अलग होने में उस दीवार की I ताकत don't know है। those who are watching can see this. मुझे पता नहीं कि जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्या वो चित्र देख पा रहे And by हैं। looking at this passage, we can gain some understanding.
और इस अध्याय को देखकर हम कुछ समझ या कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते which हैं is so important for us as a people of God. और परमेश्वर के जन होने के नाते हमारे लिए बहुत I महत्वपूर्ण remember है। God speaking to us as Regions Beyond Churches in 2012. और मुझे याद है परमेश्वर 2012 में उन्होंने रीजन्स बियॉन्ड कलीसिया होते हुए हमसे ये बातें की थी। When one nation was plundered, replundered, और जब वन नेशन चर्च का फिर से बोना हुआ था, God spoke to us at that time. We have to be people like this. और परमेश्वर ने उस समय हमसे बातें की थी कि हमें इस तरह के लोग होना है। And that will be the uniqueness, that will be the difference that we bring into where we are and where we serve. और जहाँ हम हैं और जहाँ हम सेविकाएं करते हैं वही बात वहाँ पर वो अनोखी बात होगी हमारे अंदर जो एक बदलाव लेकर So आएगी। let's look at this passage about the uncut stones. तो आइए इस अध्याय को देखते हैं जो समूचे पत्थरों को लेकर है। I want to bring few principles. और मैं कुछ सिद्धांत लेकर आना चाहता हूँ। And it says no chisel must be used on it. और वहाँ पर लिखा है उस पर कोई छेनी नहीं होनी चाहिए, जैसे टांकी डालते हैं पत्थरों पर वो नहीं की जानी Which चाहिए। means no human being has worked on it. उसका अर्थ ये है कि किसी मानव ने मनुष्यों ने उस पत्थर पर काम नहीं किया But होना these are चाहिए, designed by God. क्योंकि ये आकार दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा It has come from the nature. और ये नैसर्गिक रूप से ये पत्थर आए हैं। And what can we learn? और हम क्या सीखते हैं? The first thing, सबसे पहली बात, each one of us is unique and important. हम में से हर कोई अनोखे है और महत्वपूर्ण है। Each one of us are handpicked by God. और हमें हर किसी को हर एक को परमेश्वर द्वारा चुना गया है। It says in Psalm 139 verse 13 to 16. और भजन संगीता 129 वचन 13 से 16 में ये बात It लिखी says, है। you have created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. और वहाँ पर ये लिखा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने तो मुझे माता के गर्भ में रचा Verse है। 14 it says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made, and your works are wonderful. I know that full well. और वचन 14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के Verse हैं। 15, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. और 15वें वचन में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। This scripture speaks about each one of us are so different and so unique. और ये वचन बताते हैं कि हम सभी इतने अनोखे हैं, इतने अलग हैं। God has not created anyone in the same way. और परमेश्वर ने किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया है। God created all of creation with his signature of uniqueness. और परमेश्वर ने पूरी रचना को उसके अलौकिकता के हस्ताक्षर से बनाया है। We are all different. हम सब अलग हैं। Not a single leaf is similar. कोई एक पत्ता भी एक जैसा नहीं होता No है। grain of sand is similar. और रेत का एक कण भी एक समान नहीं No होता है। snowflake is similar. और कोई भी हिम कण भी एक समान नहीं They're all होता। unique. वो सब अनोखे हैं। As we are so unique. और वैसे हम भी अनोखे हैं। Every man is different. Every woman is different. हर एक मनुष्य अलग है, हर एक महिला अलग है। Men and women are different. पुरुष और महिलाएं अलग है। Men are more muscular. और पुरुष जो है वो ताकतवर है I know women tend to be more delicate. और महिलाएं जो है वो कमजोर होती है या नाजुक होती है। You know, men bring out strength, the women bring out beauty. और पुरुष जो है ताकत
दिखाते हैं और महिलाएं जो है खूबसूरती दिखाती है। Yeah, the truth is that we are created differently. और सच्चाई ये है कि हमें अलग तरीके से अलग बनाया गया है And we need to celebrate that और uniqueness. हमें उस अनोखी बात का उत्सव मनाना है। You know, you cannot be someone else. आप कोई और नहीं हो सकते हैं Even one church cannot be like another church. और एक कलीसिया भी दूसरी कलीसिया की तरह नहीं हो One सकती nation है is not like any other church. और वन नेशन चर्च कोई और चर्च की तरह नहीं है And we are not threatened by any other church. और हमें किसी और कलीसिया से डरने की आवश्यकता नहीं है। You know, I am not like anybody else. मैं किसी और की तरह नहीं हूँ And I should not be threatened by anybody else. और मुझे भी किसी और से डरने की Because, जरूरत नहीं है because I am unique in God's क्योंकि sight. मैं परमेश्वर की नजर में अनोखा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you, if I knew this 20 years back, I would have been different. मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 साल पहले अगर ये बात मुझे पता चल जाती तो मैं अलग व्यक्ति होता Or if 30 years back I knew, I would have been more fruitful. और अगर 30 साल पहले मुझे पता होता तो मैं और फलवंत होता Because I always wanted to be like somebody else. क्योंकि मैं हमेशा किसी और की तरह होना चाहता I था। thought someone else is better than me. मुझे लगा कि कोई और है मुझसे बेहतर है वो, I am unique in the way God has made. लेकिन जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया उसमें मैं अनोखा हूँ। You are unique in the way God has made you. आप अनोखे हो जिस तरह से प्रभु ने आपको You बनाया are है unique in the way God has put in, which family God has put you और in. जिस परिवार में परमेश्वर ने आपको रखा है उसमें आप अनोखे हो। And if we are secure in that, अगर उसमें हम सुरक्षित महसूस I want करते to हैं, tell you, He can bring the best out of you. मैं आपको बताऊं आप में से सबसे उत्तम वह निकाल कर You know, आएगा। if we quickly understand this, it will help our Christian life. और मैं आपको बताऊं अगर हम जल्दी से ही ये बात को समझ जाएंगे तो हमारे मसीही जीवन में बहुत मददगार होगी And वो it will बात help our marriage. और हमारे शादीशुदा जीवन में भी It will मदद help our होगी dealings with people. और लोगों के साथ हम कैसे निपटते हैं उसमें भी मदद होगी। Hallelujah. हालेलुया। You know, secondly, दूसरी बात, people are more important than their gifts. और लोगों के वरदानों से ज्यादा लोग महत्वपूर्ण होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। People are important. लोग महत्वपूर्ण है Not, you know, than their talents or gifts or whatever they have. और उनके जो भी गुण है या वरदान है उनसे ज्यादा God loves you as you are. परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे आपसे प्रेम He करता है wants you to come to Him as you are. और वो चाहता है आप जैसे हैं वैसे ही आप उसके पास आ जाए। One of the things God has been speaking to us recently with Sweeten and me is that people are important. और एक बात हाल ही में परमेश्वर मुझसे और स्वीतन से कर रहे हैं वो ये है कि लोग महत्वपूर्ण है Not just this gift alone. कि सिर्फ उनके वरदान ही नहीं। You know, we don't see God choosing people for their gifts and talents. और हम नहीं देखते कि परमेश्वर लोगों को इसलिए चुनता है क्योंकि उनके पास वरदान है, कोई हुनर है, So that God can fulfill His purpose. ताकि उसके मकसद पूरे हो जाए। Yes, God works everything according to His purpose and will. हाँ, परमेश्वर हर एक काम उसके मकसद और उसकी इच्छा के अनुसार करता But है। if you look at the heart of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हृदय को देखते हैं, you know, God loves you full stop. आपको परमेश्वर पूरे हृदय से प्रेम करता है। Not that God loves you because you have some, you know, some extra talents and gifts and, you know, skills in your life. ऐसा नहीं, प्रभु आपसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि आपके पास कुछ खास हुनर है, वरदान है। Amen. It says in Ephesians chapter 1 verse 4. और इफिसियों की किताब पहले अध्याय वचन 4 में लिखा है, It says, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Then it says, in love He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ. और इफिसियों के पहले अध्याय वचन 4 और 5 में ये बात लिखी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाए। Hallelujah. It says, Hallelujah. in love He predestined us for और the adoption as sons. और वहाँ पे लिखा है, प्रेम के द्वारा उसने हमें
चुन लिया अपना बेटा और बेटी Why कहकर। he chose you? क्यों आपको चुन लिया? Because he loved you. क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया Before the foundation of the world, he chose you. और जगत का निर्माण हो जाए उससे पहले ही उसने आपको चुन लिया In है। accordance with his pleasure and will, the Bible says. और वहां पर लिखा है शास्त्र में अपनी इच्छा और भले अभिप्राय के अनुसार उसने चुन लिया है In the Old आपको। Testament, it says the same thing. और पुराने नियम में भी यही बात लिखी है Deuteronomy 7, verse 7 and 8. और व्यवस्था विवरण की किताब में यह बात लिखी है। It says, the Lord did not set his affection on you and chose you because you are more numerous than other people. You were the fewest of people. It was because the Lord loved you. And he kept an oath he swore to his ancestors. Verse 7. और वहां पर लिखा है यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। Amen. That's it. It says he not because you are great or big or small, he loved you because he loved you. इसलिए नहीं क्योंकि तुम महान थे, बड़े थे या छोटे थे, उसने प्रेम किया क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Your personality is unique. और तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो अनोखा है, अलग है। You know, like I said before, there is no one like you in the whole earth. और जैसे मैंने पहले बताया पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। He chose you with all that you are. और आप जो है उसी के साथ परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। And he said, you come to me and I will change you. और वो कहता है तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बदल दूंगा। You don't have to change and come. और आपको बदल कर आने की जरूरत नहीं है। Every other religion says you got to do something to come to God. और हर एक दूसरा धर्म कहता है तुम्हें कुछ करना है ताकि तुम परमेश्वर के पास आओ। Yeah, you got to have a bath, you got to bring a coconut, you got to bring some flowers, you got to do some sacrifice, you got to do everything to come to God. God says, just come as you are. और ऐसे कहता है वो धर्म के तुम्हें नहाकर आना है, तुम्हें नारियल लेकर आना है, ये बलिदान करना है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। Hallelujah. That's the uniqueness of the God of this Bible. और बाइबल के परमेश्वर की वो ही अनोखी बात है। He says, come to me, I will change you. और वो कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बदल दूंगा। Every religion says change and come. हर एक जो धर्म है वो कहता है बदलो और फिर आओ, God says, come just as you are. लेकिन परमेश्वर कहता है आओ तुम जैसे हो With वैसे आ all your जाओ। sin and with all your mess, you come to me. I will clean you. और तुम्हारे सारे पाप और तुम्हारी सारी गंदगी के साथ मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Uncut stone. समूचा हुआ पत्थर। Yeah, you got to begin to like yourself. और आपको अपने आप से प्रेम करने की जरूरत है। I'm not saying you got to love yourself too much. और ये नहीं कह रहा हूँ अपने आप को आपको ज्यादा प्रेम करने की You got to begin जरूरत to है। like the way God has made you, whatever He has done in your life. आपको जरूरत है कि आप अपने आप को जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है वैसे आप अपने आप को प्रेम करें। People are important, not their gifts. लोग महत्वपूर्ण हैं, उनके वरदान नहीं। Amen. आमेन। Amen. If that principle, we can absorb that principle, I want to say the world will be so different. अगर उस सिद्धांत को हम समझ ले, उसे ग्रहण कर ले, तो मैं आपको कहूँ दुनिया बहुत अलग हो जाएगी। When I became a Christian, I wanted to be a nice fellow so that everybody will like me. और जब मैं यीशु में आया तो मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था ताकि सब मुझे पसंद करें। Not because I knew God loved me so much. इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है। You know something? आपको जानते हैं, If we understand God's love more, अगर हम परमेश्वर के प्रेम को अधिक समझ लेंगे and if we begin to, to enjoy that love, I want to tell you, other people will love you, like you as well. और अगर उस प्रेम में आप आनंद लेंगे तो मैं आपको बताऊं कि दूसरे लोग भी वो पहचानेंगे और आपसे प्रेम करने लगेंगे। Many people want to idolize others. और कई लोग हैं दूसरों से प्रेरित होते हैं या उन्हें मूर्ति बना लेते हैं। People always idolize a hero or heroine or someone else. और हमेशा एक हीरो या हीरोइन को मूर्ति बनाते हैं, उन्हें पूजने लगते हैं। And you secretly feel, oh, I want to be like that person. और गुप्त में कहीं आपको लगता है अरे मुझे उस व्यक्ति की
तरह होना है। Brothers and sisters, I want to tell you something. भाई और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, Don't ever कभी भी want to be like somebody else. किसी और की तरह होने की कोशिश मत करना। You know, if you only know the difficulties, the challenges that they go through, अगर आप कभी जान लेंगे जो संघर्ष या जो चुनौतियों से वो गुजरते हैं, the weaknesses that they have, उनकी जो कमजोरियां हैं, the fears that they have, जो उनके डर है the vices that they have, और जो उनके दोष हैं, if you just get into their hearts अगर उनके हृदय में आप झांक लेंगे and you say, oh, I don't want to be like them. I'm happy the way I am. तो आप कहेंगे नहीं, मुझे उसकी तरह नहीं होना है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा खुश हूँ। Amen? आमेन। Yeah? God loves you the way you are. परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे ही आपसे प्रेम करता है। Amen. It says, you know, God loves you just the way you are. परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे आपसे प्रेम करता है। You know, we always idolize leaders and people, heroes and heroines. और हमेशा हम लोगों को और हीरो हीरोइन को हम उनसे प्रेरित होते हैं, You know, उन्हें पूछते हैं। this pandemic has exposed many great leaders. और इस महामारी ने ऐसे कई महान अगुवों को खुला कर दिया है। Many great leaders have fallen. और कई ऐसे महान अगुवे जो है वो गिर पड़े हैं। You know, some years back I heard about a leader falling into some kind of sin and was asked to step down. और कई साल पहले मैंने सुना कि एक अगुवे है वो किसी पाप में गिर गए और उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया। I was disappointed. और मैं निराश हो गया। And I was talking to Sweeten and I said, what a waste of a gift. और मैं स्वीटन से बात कर रहा था और मैंने कहा कि एक वरदान का यहाँ पे व्यर्थ जाना जैसा हो गया है। What a waste of a gift. एक वरदान व्यर्थ चला गया। Then I realized I liked his gift more than him. और फिर मुझे ये जान पड़ा, मैं समझ गया कि उस व्यक्ति से ज़्यादा उसके वरदान को मैं पसंद करता हूँ। I didn't love the person, but I loved the gift. और मैं व्यक्ति से प्रेम नहीं करता था, लेकिन मैं उसके वरदान से And I प्रेम asked करता the था। question, is God like us? और मैंने ये प्रश्न पूछा, क्या परमेश्वर हमारी तरह है? Is he after our gifts? क्या वो हमारे वरदानों के Is he पीछे after है? our talents? क्या वो हमारे हुनर के Is पीछे he है? after people to fulfill his ultimate vision for the world? क्या वो लोगों के पीछे इसलिए है कि जो संसार के लिए उसका लक्ष्य है वो पूरा हो No, जाए? he is not after नहीं, the gifts, but he is after you. वो वरदानों के पीछे नहीं है, लेकिन वो He आपके loves पीछे you है। and he is passionate about you. वो आपसे प्रेम करता है और आपको लेकर उसमें जुनून Psalm है। 103 verse 11 to 13. और भजन संगीता 103 वचन 11 और I'll just read 13। one verse. As high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. और वहां पर लिखा है कि जैसे 103. Just translate. As high as the heavens are above the earth, और जैसे कि स्वर्ग पृथ्वी से जितना ऊंचा है, so great is his love for those who fear him. और उतना ही उसका प्रेम महान है उन लोगों के लिए जो उसका भय मानते So हैं। brothers and sisters, let's not use people to fulfill our goals and ambitions. तो आइए भाइयों और बहनों, हम लोगों का इस्तेमाल ना करें ताकि हमारा जो लक्ष्य है या हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाए। People are precious to God. और लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है And they must become precious to us और as वो well. हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होने The चाहिए। best example is Luke chapter 15, the story of the prodigal son. The father loved him, not loved his gifts. And even when he sinned, he waited for the son to come back. और सबसे उत्तम कहानी है वो है लूका के 15वें अध्याय में उस उड़ाव बेटे के बारे में, जहाँ पिता उसके बेटे के पाप से नहीं लेकिन उससे प्रेम करता था। Father जबकि वो loved him चला no ही matter गया, what. वो चला भी गया, तब भी पिता ने उससे प्रेम रखा, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो। God showed his love by sending his son Jesus. और परमेश्वर ने भी उसका प्रेम दिखाया उसके Jesus बेटे को died for भेज you कर। as a person. यीशु आपके लिए एक व्यक्ति के रूप में मर Thirdly, गया। तीसरी बात, Each of these stones, हर एक यह पत्थर they are shaped by God. वह परमेश्वर के द्वारा आकार दिया गया है। Amen. These uncut stones, और ये समूचे हुए पत्थर
is shaped by God. वो परमेश्वर के द्वारा आकार दिए It's जाते shaped हैं by wind, water, and fire. और हवा, पानी और आग के द्वारा उन्हें आकार दिया जाता You know, है। today Christians must be shaped by the word of God and by the Spirit of God. आज मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा आकार पाना God चाहिए। is shaping people through what we go through. Maybe it's suffering, trials, heartbreaks, battles, storms in life. That's what shapes us to become परमेश्वर- what God wants us to be. लोगों को आकार देता है। शायद जिस संघर्ष से, मुश्किल से, पीड़ा से हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमें उस तिथि से ले जाता है ताकि हम वह बने जो परमेश्वर चाहता है कि हम बन जाए। Amen. आमेन। We must allow ourselves to be shaped by God. और हमें परमेश्वर को अनुमति देनी है कि वह हमें आकार दे। When we go through difficulty, you know, it is God's way of shaping us. और जब हम संघर्ष से, मुश्किलों से गुजरते हैं तो वो परमेश्वर का तरीका है हमें आकार देने का। You know, our giftings and everything is important, but the end of it, the character, who we are right inside of us, it is God is the one who shapes us. और हमारे जो वरदान है, हमारे हुनर है, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो चरित्र हमारे अंदर है उसे केवल परमेश्वर ही आकार देता David है। was 17 years old when he was anointed to be the king. और दाऊद जो था 17 वर्ष का था जब उसे अभिषिक्त किया गया कि वह एक राजा बने। But for the next 13 years, God was shaping him. लेकिन अगले 13 सालों के लिए परमेश्वर उसे आकार दे He रहा था। didn't become a king until he was 29 years old. और जब तक वो 29 वर्ष का नहीं हो गया तब तक वह राजा नहीं बना। God was shaping him. परमेश्वर उसे आकार दे रहा His था। own boss, the king Saul, was after him, and he had to run from cave to cave to cave. और उसका खुद का जो बॉस था शाऊल, वो उसके पीछे था और दाऊद को एक गुफा से दूसरे गुफा भागना पड़ा, छिपना पड़ा। What was God doing? तो परमेश्वर क्या कर रहा था? Why did he anoint him when he was 17 तो years क्यों old? जब वो 17 वर्ष का था तब उसने He उसे could have, अभिषिक्त he could किया। have been anointed when he was 28 or 29 and immediately become a king. तो 28 या 29 वर्ष में उसे अभिषिक्त करना था, तब तो वो राजा बनने वाला था। Almost 13 years, God was shaping him to be the man that will rule the nation of Israel. और 13 वर्ष तक परमेश्वर उसे आकार दे रहा था ताकि वह वो व्यक्ति बन जाए जो इज़राइल पर राज करने वाला था। You know, Steve preached again on 14th of August at our conference. He says, you know, how David was shaped to influence. और स्टीव ने बात की 14 अगस्त को जो हमारा सम्मेलन हुआ कि कैसे दाऊद को आकार दिया गया ताकि वह असर लेकर आए। Are you allowing the Lord to teach you? क्या आप परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं To कि train वह you, आपको to सिखाए, shape you? आपको प्रशिक्षण दे, आपको आकार दे? Even in this chapter we see, you know, they read the entire book of the law in front of these people. और हम इस किताब में ही भी देखते हैं कि उन्होंने व्यवस्था की पूरी किताब इन लोगों के सामने पढ़ी। All elders, men, women, children, the whole of Israel stood and heard the book of the law. और सारे धर्मवृद्ध, बच्चे, महिलाएं, पुरुष वहां पर थे और उन्होंने वह व्यवस्था की किताब को सुना। I don't know how many hours they stood. और मुझे पता नहीं कि कितने घंटे लगे होंगे। And there were children और वहां पर बच्चे भी थे like Daniel, you know, they were standing and listening to the word of the law, the book of the law. और डैनियल की तरह छोटे बच्चे वहां पर थे, खड़े थे और व्यवस्था की किताब को वह सुन रहे थे। They were shaped by the book of the law. और व्यवस्था की किताब के द्वारा वे आकार पा I रहे want to थे। ask you, are you being shaped by this book? और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस किताब से आकार पा रहे हैं? This is the word of God. और यह किताब परमेश्वर का वचन है And that is the Spirit of God. और वह परमेश्वर की आत्मा है। Fourthly, each one has a unique place in the altar. और चौथी बात यह है कि हर एक का वेदी पर एक अनोखा स्थान You know, है। whether this small stone there, और चाहे वो छोटा पत्थर वहां पर आप देख रहे हैं, it has a place. उसकी भी वहां एक जगह है। Hallelujah. हालेलुया। The other stones are dependent on that little stone there. और अगर आप देखेंगे जो बड़े पत्थर है उस छोटे पत्थर पर निर्भर है जो वहां पर है। Hallelujah. हालेलुया। You know, if you see how this mason makes this wall or make this altar,
और अगर आप देखेंगे ये मजदूर जो है वो कैसे वो दीवार को बनाता है या उस वेदी को You बनाता know, है, he has this pile of stones और ऐसे पत्थर रखे हैं बहुत सारे वहां and he पर, just picks up one stone after the other that which can fit in. और फिर वो एक एक करके पत्थर उठाता है जो एक साथ जुड़े फिट हो जाए, And slowly it begins to become a wall, begins to become a house. और धीरे धीरे वो एक दीवार बन जाती है, एक घर बन जाता है। You know, it is like God. और ये परमेश्वर की तरह है, God picks up people और परमेश्वर लोगों को चुनता है, one by one. एक एक करके लोगों को There's चुनता nobody है, is disqualified. और कोई भी ऐसा है नहीं है जो लायक नहीं You know, है। this stone can't say, oh, what is the use of me? और ये पत्थर ऐसा नहीं बोल सकता, अरे मेरा क्या काम है If इधर। you remove that stone, अगर उस पत्थर को निकाल the देंगे wall becomes bit weak. तो दीवार है वो कमजोर हो जाती है। So it is with you and me. तो वैसा ही आपके और मेरे God साथ is भी है, building this spiritual house. और परमेश्वर इस आत्मिक घर को बना रहा Each है। one of you is important. आप हर कोई महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Recently we had the death of Claude, Uncle Claude. और हाल ही में अंकल क्लॉड की मृत्यु हुई, And you know, I was there at the funeral and at the memorial service. और मैं फ्यूनरल के लिए गया था, उनकी अंतिम विधि के लिए, And और I want उनके to स्मारक say, सेवा में भी मैं था। almost everyone said this. और हर किसी ने, लगभग सभी ने ये बात And कही। it is, you know, whenever I came to church, there was Claude welcoming me. जब कभी भी मैं कलीसिया आता तो वहां पर क्लॉड होते थे मेरा स्वागत करने के लिए। Every Sunday he would be there to welcome me. हर रविवार वो वहां पर होते थे उपस्थित, और मुझे वो वेलकम करते थे। And someone said, you know, when I first came into the church, I didn't know what church looked like, you know, but Claude welcomed me and took me and gave me a seat to sit. और किसी ने ये कहा कि जब मैं पहली बार कलीसिया आया तो मैं नहीं जानता था कि कलीसिया कैसी होती थी, लेकिन क्लॉड ने मेरा स्वागत किया, मुझे ले गए और मुझे एक कुर्सी दी बैठने के लिए। And today, I think when we get to heaven, Claude will be there to welcome us. और मुझे लगता है जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां पर क्लॉड होंगे हमारा स्वागत करने के लिए। Amen. आमेन। Nobody is a mistake. और कोई भी एक गलती नहीं है, No one is unqualified. और कोई भी ऐसा नहीं है जो उस लायक नहीं है। Hallelujah. Every stone is important. There's a small one here. Even that is important. और हर एक पत्थर जो है महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा है उधर, वो भी महत्वपूर्ण है। I want to tell you, if you're thinking of wanting to be someone else, और मैं आपको बताऊं, यदि आप सोच रहे हैं या आप चाहते हैं किसी और की तरह if you होना, want to be like someone else, या आप किसी और की तरह होना चाहते I हैं, want to tell you, you are engaging in idolatry. तो मैं आपको बताऊं आप मूर्ति पूजा में शामिल हो रहे हैं, And you're borderline in unbelief. और आप में अविश्वास है जैसे कि, It's a sin and we need to repent. और ये एक पाप है और आपको पश्चाताप करने की And we need जरूरत to है। think the way we need to start thanking God for making you. और आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि उसने आपको आप बनाया How है। many of you will remember this Sunday school song? और आप में से कितने लोग को ये संडे स्कूल का एक गीत है वो If याद I है? were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. और मैं अगर तितली होता मैं धन्यवाद कहता प्रभु कि आपने मुझे पंख दिए हैं। If I was a robin in the tree, अगर एक रॉबिन होता मैं I वृक्ष thank you, पर, Lord, that I could sing. तो मैं धन्यवाद कहता कि मैं गीत गा सकता If हूँ। I was a fish in the sea, और समुद्र में अगर मछली I होता would wiggle my tail and giggle with glee. और मैं मेरी पूंछ हिलाता और फिर मैं आवाज करता। Then it says, I want to thank the Father for making me. लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता से कि आपने मुझे मैं बनाया है। Because you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and made me your child. क्योंकि आपने मुझे हृदय दिया, मुस्कुराहट दी है प्रभु, और मुझे यीशु दिया और मुझे We आपका got to start संतान thinking. बनाया We है। got to start thanking God. तो for हमें making प्रभु us. को धन्यवाद I करने just की have one or शुरुआत two करनी है। points. It says, the fifth one, it says, we don't try to clone. और पांचवी बात ये है कि हम हूबहू होना, किसी की तरह होने की कोशिश नहीं करते। You know, when we were children, our parents would always compare us with others. और हम जब बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमेशा हमारी तुलना दूसरों के साथ करते थे, Either with our siblings or neighbors or peers.
भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ या दोस्तों के साथ Says, में, look at the way he is studying. और कहते थे देखो वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, He's getting 95%. और What देखो about you? उसको 95% मिला है और तुम्हें देखो, See, she has become an engineer. She has become a doctor. देखो What about इंजीनियर you? बना, वो डॉक्टर बना, और तुम क्या कर रहे The हो, way you're going, you will become a driver. और तुम जैसे कर रहे हो तुम ड्राइवर बनोगे, Be like him or be like her. उसकी तरह बनो या उसकी तरह बनो। See how she sings so nice. देखो कैसे गाना गाती है, कितना अच्छा। See how he's playing cricket and football. Go out and go try और playing देखो cricket. वो कैसे क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तुम भी जाओ बाहर और खेलो। I want to say this is a pressure for every child. और मैं आपको कहूँ ये हर एक बच्चे के लिए ये दबाव होता You है। know, some children begin to hate themselves. और कुछ बच्चे हैं वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं, They hate the person whom they are compared with. या वो उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जिसके साथ उनकी तुलना होती है। We must stop. हमें ये बंद करना As है। parents, माता पिता होने के it's your नाते responsibility to see your children doing good. हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि हमारा बच्चा भला करे, अच्छा And करे, it's your responsibility to see what they are good at. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये खोज करें, देखें कि वो किन बातों में And अच्छे हैं encourage them. और उन्हें प्रोत्साहित And करें give them opportunity to excel in what they are good at. और उन्हें मौका दे कि वो जिन बातों में अच्छे हैं उस पर वो बढ़े। You know, in India, we try to make our children clones. You say, oh, he's an engineer, you become an engineer. He's a doctor, you become a doctor. और भारत में हम हमारे बच्चों को ऐसे अनुकरण करने कहते हैं, देखो वो डॉक्टर है तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर And बनना चाहिए। Sometimes even in church, we want any good person comes and says, be a pastor, become a leader. और हम अगर देखते हैं कलीसिया में भी कोई अच्छा व्यक्ति आए तो कहते हैं अगुआ बनना है, पास्टर बनना है। And we can forget there are so many other fields where, you know, we can influence the world. और हम भूल जाते हैं कि कैसे कई क्षेत्र हैं जिसके द्वारा हम संसार पर एक असर लेकर आ सकते Church हैं, is guilty of that. और कलीसिया को इस बात We का must encourage people to pursue business, commerce, industry, education, politics. और हमें लोगों को ये प्रोत्साहित देना चाहिए कि वह व्यवसाय में, राजनीति में, मनोरंजन में, मीडिया में, इस तरह की बातों में वो भाग ले। You know, Bible never encourages to become like someone except become like Jesus. और शास्त्र हमें कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता हम किसी और की तरह बने यीशु मसीह के अलावा। He is the perfect person. और वह सिद्ध व्यक्ति We are है, encouraged to be more like him. और हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम ज्यादा उसकी तरह बने। It's good to follow people and their example, but we don't try to become like them. We try to become like Jesus. लोगों के पीछे चलना या उनकी तरह उनके उदाहरण के पीछे चलना वो ठीक है, लेकिन हम प्रोत्साहित करते हैं कि लोग यीशु मसीह की तरह बने। And I think as parents and some of us, we need to repent. He says, God, forgive us. और एक माता पिता होने के नाते या व्यक्ति होने के नाते हमें पश्चाताप करना है और कहना है प्रभु हमें क्षमा करो। I'm personally guilty of that. और मुझे इस बात का खेद है, मैं पश्चाताप करता हूँ। Sometimes we cannot touch the glory of God. और कभी कभी हम परमेश्वर की महिमा को नहीं छू सकते हैं। Amen. Amen. People are the glory of God. और लोग जो है वही परमेश्वर की महिमा है। As Paul says, Christ in you, the hope of glory. और जैसे पौलुस कहता है जो मसीह तुम में है वह महिमा की आशा है। I want to make this statement. मैं आपको कहूँ यह वाक्य बनाए, We are not called to change people's personality, हमें लोगों के व्यक्तित्व को बदलने के लिए नहीं बुलाया गया but we है, are called to build character so that people can become more like Jesus. लेकिन हमें बुलाया गया है कि हम चरित्र को बनाएं ताकि लोग और भी यीशु मसीह की तरह हो I'll say it जाए। again. मैं फिर से बताऊं, We are not called to change people's personality, हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम लोगों के व्यक्तित्व को बदल दें, but we are called to build character लेकिन हमें बुलाया गया है कि हम चरित्र को बनाएं so that people can become more like Jesus. ताकि लोग और भी यीशु मसीह की तरह बन Two more जाए। points. I finished. Finally, it says, second last point. They are fully dependent on each other.
और पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर They are leaning on each other. वह एक दूसरे पर गिरे Can हैं। you put some other picture? They lean on each other. See, they lean. They take support from each other. और एक दूसरे पे गिरते हैं, एक दूसरे का वो सहारा लेते हैं They are interlocking on each other. और एक दूसरे से एकदम करीब से जुड़े हैं Together we give shape. और साथ मिलकर ही हम आकार देते We हैं। need one another. हमें एक दूसरे की जरूरत है। It's not just individual doing things their own. It says we become part of something. और अकेले में या अपने आप से कुछ करने की बात नहीं, Together लेकिन we हम are किसी built चीज का into भाग a होते holy हैं house. और साथ मिलकर हम एक पवित्र घर बन जाते A हैं। temple where God lives by His और Spirit. ऐसा मंदिर जहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा निवास करता है। Hallelujah. It says in Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 19, and I just want to read few verses. और इफिसियों की किताब दूसरे अध्याय वचन 19 में यह बात It लिखी says, है। consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself is the cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And verse 22 says, and in Him you too are being built together, become a holy dwelling in which God lives by His Spirit. और वहाँ पर लिखा है इफिसियों की किताब दूसरे अध्याय वचन 19 से 22 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। वचन 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और अंत में 22वें वचन में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। You know, 2 or 3 times it says we are being built together. और 2 या 3 बार लिखा है कि हमें साथ मिलाकर बनाया जा रहा We है। are being built together to become an altar, become a house, a spiritual house. और हमें साथ मिलकर बनाया जा रहा है ताकि हम एक आत्मिक घर बन जाए, एक वेदी बन जाए। Amen. We are आमेन। not alone, but we are together. हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हम सब एक साथ हैं। We support each other. हम एक दूसरे का सहारा लेते हैं। Finally, अंत में significance is in the sacrifice, not in the altar. और जो महत्वपूर्ण या खासियत है वह बलिदान में है, वेदी में नहीं। Just having this altar is meaningless. और सिर्फ यह वेदी का होना उसका कोई अर्थ नहीं है। It is meant for something. वो किसी चीज के लिए बनाई गई है, It किसी is- मकसद it के is लिए। meant to offer sacrifices. वह बनाई गई है ताकि वहां पर बलिदान दिए जाए। You know, we are being built together for a purpose. और हमें बनाया गया है एक मकसद के We लिए। are unique, we are different, we are important, but for one purpose. और हम अनोखे हैं, हम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें बनाया जा रहा है एक मकसद के लिए, So that His kingdom may come. ताकि उसका राज्य आ जाए, His will may be done. उसकी इच्छा पूरी हो जाए The gospel may progress. और सुसमाचार फैलता जाए, Jesus will become famous. ताकि यीशु मसीह प्रसिद्ध हो जाए। You know, our significance has to be in the fruit of our togetherness. और हमारी जो खासियत है हमारे एकता के फल में दिखाई देनी Not on चाहिए। individual achievements. और हम अकेले में क्या हासिल करते हैं उसको लेकर नहीं। Church is not a building, but a people who love one another. और कलीसिया एक इमारत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से A प्रेम people करते who हैं, worship God together. और ऐसे लोग जो परमेश्वर से साथ मिलकर आराधना Have a करते हैं, common purpose to share Jesus. और उनका एक ही मकसद है, वो है यीशु मसीह को बांटना। Hallelujah. हालेलुया। If the COVID came, the pandemic came, the churches were closed down, but did really the church was closed down?
और जब कोविड आया, जब महामारी आई तो कलीसियाएं बंद हो गई, लेकिन क्या सच में कलीसिया बंद हुई? The buildings were closed, और जो इमारतें थी वो बंद हो गए, but the church continued. लेकिन Hallelujah. कलीसिया मिलती रही। Because हालेलुया। church is about people. क्योंकि कलीसिया लोगों को लेकर We है, are joined together हम साथ में जुड़े हुए हैं to worship God together. ताकि साथ मिलके हम प्रभु की आराधना Hallelujah. करें। हालेलुया। In conclusion, और अंत में, when Joshua built the altar with uncut stones, और जब यहोशू ने उस वेदी को बनाया समूचे पत्थरों के द्वारा, God was sending a message तो परमेश्वर एक संदेश भेज to रहा the था Israelites that they are unique. इजरायलियों के लिए कि वे अनोखे हैं, Not a handiwork of some human or religion, but you're the handiwork of God. और मनुष्य की रचना या धर्म की रचना नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के रचे हुए हो, You're unique and you're uniquely shaped. और तुम अनोखे हो और अनोखे तरीके से तुम्हें आकार दिया गया है। You're important and you're dependent. As you depend on each other, you will make a beautiful altar for worship. और तुम महत्वपूर्ण हो और एक दूसरे पे निर्भर हो, और जैसे तुम एक दूसरे पर निर्भर रहोगे, एक खूबसूरत वेदी बनाओगे जहां पर आराधना होगी। Amen. आमेन। We are here for a purpose, to become a holy temple. और हम यहाँ पर है एक मकसद के लिए, ताकि हम पवित्र मंदिर बन To जाए, become a spiritual house for God. ताकि हम परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर बन So जाए। finally, brothers and sisters, तो अंत में भाइयों और बहनों, can I encourage you? क्या मैं आपको प्रोत्साहित करूं? Let us throw off all jealousy तो आइए सारे जलन को फेंक निकाले, and envy, और ईर्ष्या को, competition, स्पर्धा को, but know that you are unique in God. लेकिन जान ले कि आप परमेश्वर में अनोखे हैं। Know that you are important. जान लो कि आप महत्वपूर्ण हो, Know that you are special. जान लो कि आप खास हो, Know that you are a chosen generation, आप चुने हुए वंश a हो, royal priesthood, याजकीय याजक, a holy nation, पवित्र राष्ट्र, are unique in God, परमेश्वर की नजर में so that अनोखे, we may serve Him for His glory. ताकि हम उसकी महिमा के लिए Come, उसकी let's just सेवा stand करें। up. Let's just आइए stand हम खड़े हो Let's जाएं। just pray. आइए प्रार्थना करते हैं। If you feel convicted, अगर आपको एहसास हो रहा है all your life you wanted to be like someone else, पूरे जीवन आप किसी और की तरह होना or चाहते थे, secretly you say, I don't like myself, I don't like the home that I come from, I don't like the height, I don't like the I'm so fat or whatever, you know, if there is something, will you just repent before God? या आप गुप्त में पूरे जीवन ये कहते रहे हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे पसंद नहीं है, जिस घर में मैं रहता हूँ मुझे नहीं पसंद, मेरा कद नहीं पसंद। अगर आपने ऐसा किया है तो क्यों ना आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। Let's just look to God. आइए परमेश्वर की ओर देखें। God wants to make an altar with uncut stones, परमेश्वर समूचे पत्थरों के द्वारा वेदी बनाना so चाहता that है, there could be worship, ताकि वहाँ आराधना हो there could be sacrifices और वहाँ पर बलिदान किए जाए for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। I want to just give you a few seconds. मैं आपको कुछ क्षण देना चाहता हूँ। If God has convicted you, will you just repent and say, God, forgive me? अगर प्रभु आपको एहसास दिला रहा है तो क्यों ना आप पश्चाताप करें और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर। And will you start thanking God for making you you? और आप खड़े रहे, प्रभु का धन्यवाद करें और कहे, प्रभु मैं जैसा हूँ वैसा मुझे बनाने के लिए धन्यवाद। I am unique. मैं अनोखा हूँ, I am important. मैं महत्वपूर्ण हूँ, I am shaped by God. मैं प्रभु के द्वारा आकार दिया गया हूँ। God put me together in my mother's womb. प्रभु तूने माँ के गर्भ में मुझे रचा है, You saw my unformed body. तूने मेरी न जन्मे शरीर को प्रभु बनाया। You made me the way I am. जैसा मैं हूँ वैसा I'm तूने मुझे grateful to you, बनाया। Lord. मैं आभारी हूँ तेरा And प्रभु, from today, I want to walk in the freedom. और आज से मैं आज़ादी में I चलना want to चाहता walk in हूँ, the freedom that you give me. और जो आज़ादी तूने मुझे दी प्रभु उसमें मैं चलना चाहता for हूँ। making me me. मैं जो हूँ वो मुझे बनाने के Come, let's लिए। just repent before God. आइए प्रभु के सामने पश्चाताप करें, If you don't have to repent, you just begin to thank God. और पश्चाताप के लिए कुछ नहीं है तो धन्यवाद करें प्रभु का। Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Father God, we pray this morning that you would give us grace. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुबह आप हमें अनुग्रह देंगे। Lord, we want grace, Lord. प्रभु हमें अनुग्रह चाहिए। We live in this world of competition. और प्रतियोगिता के इस संसार में हम जी रहे Everyone हैं is in a rat race, Lord God. और हर कोई प्रभु दौड़ रहा है। More fame, more money, more power, more authority. प्रसिद्धता चाहिए प्रभु, उन्हें पैसा चाहिए प्रभु, अधिकार चाहिए। But we forget, Lord, that you are our maker. लेकिन हम भूल जाते प्रभु कि आपने हमें बनाया है। You made me me, आपने मुझे मैं बनाया है, so unique, इतना अनोखा, so full of love, प्रेम से भरा हुआ, so full of purpose. मकसद से भरा हुआ। Lord, we pray, God, will you help us to understand this? प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करोगे ये समझने के That we लिए। may live in the good of what you called us to be. प्रभु जो आपने हमें होने के लिए बुलाया है प्रभु, हम Release उसमें grace जिएंगे। this morning, Lord. अनुग्रह Set डाल people दो free, प्रभु। Lord God. Set people free, आजाद कर दो प्रभु लोगों wanting को to be like someone जो else, किसी और की तरह होना चाहते हैं idolizing others, Lord और God. से प्रेरित हो रहे, We मूर्ति have बना only रहे one प्रभु। person to admire, प्रभु Lord. एक ही व्यक्ति है जिसे That हम is you, प्रेरणा Lord पाते हैं प्रभु, Jesus. वो यो आप है प्रभु No one यीशु। else will we bow down to, Lord प्रभु God. और किसी की और नहीं No one झुकते will, प्रभु no one हम। else, Lord. We will give you praise and our worship, Lord प्रभु हम और God. किसी को आराधना नहीं You are देंगे the most प्रभु। beautiful one, Lord. आप सबसे You are the खूबसूरत most है, wonderful one, Lord आप God. सबसे You are the अद्भुत most है, majestic one, Lord आप God. सबसे महिमा And में we है pray, प्रभु। lift our eyes to you, Lord हमारी God, आंखों को आपकी ओर उठा दो so प्रभु, that we may worship you, ताकि हम आपकी आराधना so that करें, we may become more like you, Lord. ताकि और भी आपकी तरह हो जाए। Help us, we pray. हमारी मदद करो प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. God bless you. आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। Thank you, Franco, धन्यवाद फ्रैंको अंकल, for the lovely word. बहुत अच्छा वचन था। I believe we've all been challenged. और हम ऐसा मानते हैं कि हम सब एक चुनौती में, हम सबको ये बहुत चुनौती लगा है To see and not just hear what we heard, हमने सिर्फ देखा और सुना नहीं, but to start asking God to change if we have ever held any idols before us. पर हमने प्रभु से पूछा कि हमें बदले अगर हमने कुछ मूर्ति रखा था हमारे सामने। This week ahead, और इस हफ्ते में I believe that God is going to not only do, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु सिर्फ करने नहीं वाले, He is going to change वो हमें बदलेंगे, everything in and around you. वो हमें सब कुछ और हमारे आसपास सब कुछ बदलेंगे। That is a good God that we serve. और ये हम भले प्रभु है जिससे हम सेवा करते हैं। Well, thank you each and everyone. और धन्यवाद आप सभी को। But before we end, I just want to make one more announcement. और हम ख़त्म करने से पहले मैं एक और सूचना करना चाहता हूँ। All those who would like to come physically in the following Sunday, और जो अगले रविवार जो चर्च में आना चाहता है, please do get in touch with Amit. आप अमित से संपर्क करें He'll be in the church office और वो चर्च ऑफिस में रहेंगे, because we do have a restriction on the number of people. क्योंकि हम ज़्यादा लोग को नहीं रख सकते हैं। And wish you a very good week ahead, और मैं आपको बहुत अच्छा सप्ताह विश करता हूँ, filled with the love of God. प्रभु के प्यार से भरपूर। Thank you. Bye-bye.